हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल नियाजी क्लासेस। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 10 दी प्रपोजल। और आज हम आप लोगों को इसकी समरी हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। The proposal is a one-act play that begins with a young man Lumov presenting a marriage proposal to his neighbor's daughter। ये जो दी प्रपोजल है, ये एक एक्ट है जिसमें कि जो लुमोव है, एक लड़का है, एक यंग मैन है जो कि अपने नेबर की लड़की के लिए एक प्रपोजल ले जाता है मैरिज का। Before he could actually convey it to the girl, they enter into an argument about Oxen Meadows। वो मैरिज प्रपोजल से पहले उसकी लड़के से एक झगड़ा ऐसा होने लगता है लड़की से कि ऑक्सन मिडोज के ऊपर, जो कि इन लोगों की एक ज़मीन थी। चुबुको द लेडीज फादर ऑल्सो जॉइंस द हीटेड डिस्कशन। जो चुबुको होता है, लड़की का फादर जो होता है, वो भी इसमें आ जाता है डिबेट में। After they end this, they enter into another argument about their dogs and which one is better than the other। जैसे ही वो ख़त्म होती है, मतलब ऑक्सन मिडोज के ऊपर जो डिबेट चल रही, लड़ाई होती है, कन्वर्सेशन, और उसके बाद वो लोग फिर एक और आर्गूमेंट में आ जाते हैं कुत्तों के ऊपर, किसका डॉग ज़्यादा अच्छा है। In the midst of all this, proposal gets forgotten until Lumov falls off due to his palpitations and Chubuko instantly puts her daughter's hands in Lumov's। Unfortunately, the quarreling still continues। तो चलिए अब आपको इसके कैरेक्टर्स बता देते हैं, कौन कौन है, उसके खूबियाँ बताएंगे, मतलब कैरेक्टर के बारे में। Lumov is a hypochondriac who wants to get married for the sake of appearance। जो लुमोव है वो काफ़ी हाइपोकॉन्ड्रिक है और वो अपनी जो शादी है वो दिखावे के लिए एक तरीके से करना चाहता है। He doesn't seem to love Natalia but decided to marry her because she is the best woman available। उसका जो मतलब लुमोव था, वो उसे मतलब प्यार तो नहीं करता था नटालिया से, मगर वो उसे मैरी इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा मतलब एक तरीके से रिच कह लीजिए और काफ़ी अच्छी लगती थी। He was difficult coming to the point which made the conversing with him difficult। Because of his tendency to digress, he becomes involved in silly arguments with Natalia and Chubuko about land ownership and dogs। What seems most important to him is maintaining a superior appearance, which is also true of the other two characters। अब नटालिया है जो हम लोग की सेकंड कैरेक्टर है। Natalia is a strong-willed woman who is more effective than Lumo in speaking clearly and getting to the point। नटालिया जो है वो काफ़ी एक अच्छी मतलब वुमेन है जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है लुमो से बोलने में, मतलब अपने पॉइंट को अच्छे से क्लियर करती है और अच्छे से बताती है। However, her will is focused on maintaining a superior appearance as a result। She insists that Oxen Meadows belong to her family and not to Lumo। She also argues that her dog is better than Lumov's dog। Yet, she feels that burden of being a potential if not actual spinster and thus desperately wants to marry Lumov। Despite this, her concern for being right about superficial matters takes precedence। और अब देखते हैं हम लोगों का जो तीसरा कैरेक्टर है वो है चुबुको, जो कि नतालिया के फादर हैं। चुबुको सीम्स हैप्पी अबाउट द पोटेंशियल मैरिज बिटवीन लुमोव एंड नतालिया। जो चुबुको थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे नतालिया और लुमोव की मैरिज की वजह से। However, he seems married in a mercenary way, referring to Lumov's proposal as a merchant buying goods। For him, the match is advantageous as a good business arrangement for both families। Whether Lumov and Natalia really love each other probably doesn't matter much। Despite his eagerness for the marriage to happen, Chubuko places great value on maintaining a superior appearance। As a result, he gets embroiled in the Ainan
आर्ग्यूमेंट बिटवीन लूमोव एंड नतालिया। चलिए, आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में मालूम चल गया होगा, तो अब हम लोग आपको इसकी समरी एक्सप्लेन करते हैं। द प्रपोजल समरी इन इंग्लिश। लूमोव इज रिसीव्ड इन चुबुको's हाउस। इट्स चुबुको's हाउस। लूमोव जो होता है वो चुबुको के घर आता है। लूमोव एंटर्स। चुबुको मीट्स हिम। चुबुको जो होता है उससे मिलता है लूमोव से। चुबुको इज एक्सट्रीमली हैप्पी टू मीट हिम। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ही आस्क्ड हिम टू सिट डाउन। ही ऑल्सो आस्क्ड हिम वेयर ही इज गोइंग इन इवनिंग ड्रेस। उससे कहता है, चुबुको जो होता है लूमोव से कहता है तुम बैठ जाओ। पूछता है कि तुम आज कहाँ जा रहे हो ये इवनिंग ड्रेस पहन के। काफ़ी अच्छी ड्रेस थी पहने थे। लूमोव टेल्स हिम द पर्पस ऑफ हिज विजिट। लूमोव टेल्स हिम दैट ही वाज कम टू सी हिम विद अ रिक्वेस्ट। जो लूमोव होता है वो बताता है मैं किस लिए आया हूँ। वो कहता है मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। ही वॉन्ट्स टू से बट गेट्स एक्साइटेड। वो कहना तो चाहता था मगर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। चुबुको फील्स दैट ही वाज कमिंग टू बोरो मनी। लूमोव स्टार्ट स्पीकिंग बट ही टॉक्स ऑफ this thing or that thing. At last he says that he has come to ask Natalia's hand. जो चुबुको होता है उसे लगता है ये जो लूमोव है उसे मनी बोरो करने आता है, मगर जो लूमोव होता है बातों में बाद में उसे बता देता है कि वो नतालिया का हैंड लेने आया है, मतलब प्रपोज करने आया है मैरिज के लिए। Chubuko is greatly excited to hear it as he is worried about his daughter's marriage. जो चुबुको था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि वो भी थोड़ा परेशान था अपनी लड़की के मैरिज के लिए। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 10 to help you to revise complete syllabus and score more scores in your examinations. और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं जो कि आपके लिए एग्जाम में अच्छा रहेगा। Chubuko consents. Chubuko embarrasses and kisses Loomow for it. He says that he's always wanted that. जो चुबुको होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, उसे किस करता है, लूमोव को गले लगा देता है और कहता है मैं इसके लिए पहले से तैयार था। He is also happy that he behaves idiotly. Loomow asks him if he could think that he gives his consent. Chubuko okays it. He tells him that Natalia is also in love with him. चुबुको जो होता है वो जो लूमोव होता है, लूमोव बताते हैं नतालिया उससे पहले से लव करती है। लूमोव थिंक्स ऑफ नतालिया एंड हिज ओन लाइफ। लूमोव ट्रेम्बल्स ड्यू टू ग्रेट एक्साइटमेंट। ही सीज दैट इफ ही लुक्स फॉर एन आइडियल लव ही वुड नेवर गेट मैरिड। ही गेट्स कोल्ड। हाउएवर ही फील्स दैट नतालिया इज अ गुड हाउसकीपर। जो कहता है कि नतालिया काफ़ी ज़्यादा अच्छी हाउसकीपर। शी इज़ ब्यूटीफुल एंड वेल एजुकेटेड। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी है। ही इज़ ऑलरेडी 35, सॉरी यहाँ पे 35 है मगर वो 25 की थी। जो उसकी एज है नतालिया की वो 25 है। ही शुड लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ बट ही नाउ हिज palpitations. He can't sleep. He starts jumping like a mad person. Natalia and Loomow together. Natalia enters. She asks Loomow why he has not come there for a long time. वो वहाँ पे क्यों इतने दिनों से नहीं आ रहा था, उसने नतालिया ने Loomow से पूछा. She tells him about the harvest. She asks him why he is in the evening dress. वो उसको जो खेती थी उसके बारे में बताने लग गई और कहने लगी तुम इस इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो. She further asked him if he is going to a ball. Loomow starts talking of his land. Loomow tries to tell her the purpose behind the visit. जो Loomow था उसने लैंड के पीछे बात करनी शुरू कर दी और वो बताना भी चाहता था वो क्यों आया है ऐसी ड्रेस पहन के, उसके पीछे का पर्पस क्या है. But he is off the point. He tells that he is known her family for a long time. He tells how he inherited his land and how he respects Natalia's father. He also tells her that his oxen meadows touch Natalia's bridge woods. तो वहाँ का ऑक्सन मीडोज था वो उनकी एक जो नतालिया उसकी ब्रिज वुड थी वो वहाँ से टच करता था. बट ही नेवर टेल्स दैट ही वाज कम टू पर्पस टू हर. किस पर्पस के लिए आया था उसने अभी तक नहीं बताया था. Loomow एक्सप्लेन्स दी ओनरशिप. वो जो Loomow था वो ऑक्सन मीडोज के ऊपर जो बात हो रही थी उसकी ओनरशिप बताने लग गया कि वो मेरे साइड में आती. हियरिंग दिस नतालिया गेट सीरियस. जो नतालिया थी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई. शी टेल्स
him that Oxen Meadows are not Lumov but theirs. Lumov clarifies that he is referring to Oxen Meadows. They are between Herbst Woods and the Burnt Marsh. Natalia says that they are there. Theirs. Lumov refuses it. He says that his grandmother gave those meadows to Natalia's father's grandfather. The peasants used to use the land for 40 years, but they regarded them their own. Argument continues. Natalia refuses Lumov's claim. She says that Oxen Meadows and their loves. Lumov says that he will show the documents, but Natalia said that they had the land for nearly 300 years. She can't stand unfairness through the meadows are worth 300 rubles. नतालिया कहती है कि जो ऑक्सन मीडोज है वो तुम्हारा नहीं हो सकता है, रिफ्यूज़ कर देती है और कहती है कि ऑक्सन मीडोज जो है वो हमारा है। बट जो लूमोव होता है फिर वो कहता है कि मैं इसके तुम्हें डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ। और फिर जो नतालिया होती है वो कहती है कि ये लैंड तकरीबन हमारे पास 300 साल पहले का है और कहती है कि मैं ऐसा अनफेयरनेस नहीं होने दूंगी ऑक्सन मीडोज, क्योंकि उसके जो वर्थ है वो 300 रूबल्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसका हम लोग सेकंड पार्ट निकालेंगे। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।